Welcome to Logic Simplified. In the last video, we have done some programs with while loop, and today I will start with for loop. First, I will give you explanation how does it work, and after that we'll see how it works with the programs. Let's start. If you are not aware what is the meaning of loop, then please go to the previous videos. First, find out how does loop work, what is the meaning of loop. So here we are doing for loop, and this loop is divided in three parts. That is ICU. Here I stands for initialization. Okay, and C stands for condition, and the last is U for update or updation. While loop में आपने देखा था initialization loop के ऊपर होता है, फिर condition और loop के अंदर update होता है. While and for, they both are entry control loop. What does it mean? Before you enter in the loop, first they will check the condition. If the condition is appropriate, then only you are allowed to get inside the loop, else not. So that's why they are known as entry controlled, pre-tested or top tested. These are the names and the meaning is same. So here we are having ICU, that is initialization, condition and update. I'm taking a very small program, and with that program I will try to explain all these three terms. The program is write a program to display numbers from 1 to 10. A very simple program. Now if I'm telling 1 to 10, what does it mean? You have to start from 1. There should be a variable. The value will start with 1 and the ended value will go till 10. So here it should be I is equal to 1, I less than equal to 10 and I plus plus. This is the statement for updation where you are increasing I by 1 every time. And in the loop you have to write the statement which is going to repeat each and every time, where I want to just to display the value of I. So I is equal to 1 initialized, I less than equal to 10 condition and I plus plus is updation. All these three terms are interrelated. I को कहाँ से शुरू करना है, I कहाँ तक जाएगा और I कैसे जाएगा. ये एक बहुत ही सिंपल प्रोग्राम बनाया हमने, जिसको हमने कहाँ तक एग्जीक्यूट करवाया है, till 10. And if the question is something like this, कि write a program to display only odd numbers, that is 1 to 20. So अगर क्वेश्चन ऐसा आएगा, ये सारे क्वेश्चन मैं आपको जावा में करके नहीं दिखा रही हूँ बिकॉज दे आर सिंपल. आप क्लास पब्लिक स्टैटिक वॉइड में लिख के इनको डायरेक्ट भी ट्राई कर सकते हैं. सो जब मुझे ऑड नंबर्स डिस्प्ले करने होंगे तो डेफिनेटली आई हैव टू स्टार्ट विद 1 बिकॉज माई फर्स्ट ऑड नंबर इज 1 ओनली. चलाऊंगी कहाँ तक, 20 तक. ये वाला प्लेस मैं अभी खाली छोड़ रही हूँ. विल डिस्कस अबाउट दिस. सो यस, डिस्प्ले तो आई ही होगा बिकॉज वेरिएबल एक ही पे हम अभी काम कर रहे हैं. अब आई को 1 से स्टार्ट करना है, 20 तक ले जाना है, ऑड नंबर डिस्प्ले करने. सो डेफिनेटली आई प्लस प्लस से काम नहीं चलेगा बिकॉज आई पहले 1 है, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा. मुझे ऐसा नहीं चाहिए. 1 के बाद मुझे आई इंक्रीज चाहिए +2 से. सो इट शुड गो लाइक दिस, आई इज इक्वल टू आई +2. पहले 1 डिस्प्ले होगा, then 1 plus 2 it will become 3, then 3 plus 2 it will become 5, then 5 plus 2. In that way it will go till 19. 19 में कंडीशन ट्रू है, 19 डिस्प्ले भी होगा, बट व्हेन यू गो फॉर 19 plus 2 21 तो ये फॉल्स हो जाएगा. इन दैट केस इट विल गिव यू फॉल्स और आप लूप से बाहर आ जाओगे. और ऑड नंबर की जगह पे यहाँ पे अगर इवन होता तो एक ही चेंज आता. फॉर इवन नंबर्स I should start with 2 less than equal to 20 and I is equal to I plus 2. So your update statement is here, I is equal to I plus 2 means you are increasing your I by 2. So yes, here I is starting with 2 and increasing every time with 2. For loop के कुछ और variations देखते हैं. अगर मैं ये बोलती हूँ मुझे वहां पे अपडेट नहीं करना या मुझे वहां पे इनिशियलाइज नहीं करना, नो प्रॉब्लम, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो. अगर इनिशियलाइजेशन नहीं करना है, अपडेशन नहीं करना है, बट आपको उसके लिए प्लेस तो छोड़ना पड़ेगा. मीन्स लूप 3 पार्ट में तो डिवाइड होगा ही होगा. आप उसको ऐसे ब्लैंक छोड़ सकते हो, दैट इज ओके, बट उसका प्लेस देना है ना. अगर मैं सिर्फ इतना छोड़ देती हूँ तो मेरा लूप इनफाइनाइट लूप हो जाता है. इनफाइनाइट मतलब जो कभी भी खत्म नहीं होगा, नेवर एंडिंग लूप. सो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपडेट स्टेटमेंट तो देना ही पड़ेगा. दैट इज आई इज इक्वल टू
I plus 2. So this is a perfect loop to display all the even numbers from 1 to 20. Okay. Sometimes we have requirements such as मेरे पास दो वेरिएबल है जहां पे मुझे I को स्टार्ट करना है 1 से और J को स्टार्ट करना है 10 से. अब अगर एक से ज्यादा इनिशियलाइजेशन है, जैसे मुझे I को 1 करना है और J को 10 करना है, तो आप इनको कॉमा से सेपरेट कर सकते हो, राइट? यहाँ पे सेमीकोलन लगाने की मिस्टेक नहीं करेंगे बिकॉज दे बोथ आर इनिशियलाइजेशन एंड कैन बी सेपरेटेड यूजिंग कॉमा. कंडीशन अगर आपको लगानी है I लेस देन J, आप यहाँ पे लगाओ. और अगर दो अपडेट स्टेटमेंट है, मीन्स एक से ज्यादा अपडेट स्टेटमेंट है, व्हाट डज इट मीन? मुझे I को भी इंक्रीज करना है और J को डिक्रीज करना है. अगर ऐसा करना है तो उस केस में आपको अपडेट वाले पोर्शन में कॉमा लगा के उसको सेपरेट करना पड़ेगा. यहाँ पे मैं आपको I और J दोनों डिस्प्ले करके दिखाती हूँ. सो ये कैसे जाएगा? I कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1 से और J 10 से, तो ये आपका फर्स्ट वैल्यू होगा. फिर नीचे की लाइन में I इंक्रीज हुआ है, J डिक्रीज हुआ. फिर नीचे की लाइन में I इंक्रीज, J डिक्रीज. देन 4, 7, देन it will become 5 and it will become 6. इसके बाद नहीं चलेगा बिकॉज इसके बाद आपका I 6 हो जाएगा और J डिक्रीज होके 5 हो जाएगा जो कि फॉल्स है. So that will be your output. So in that way what we did, we have done 2 initialization and 2 condition, right? दोनों two initialization and 2 update statement. Condition तो एक ही है, I less than equal to J. Somewhere you can get this kind of condition also. ऐसा भी कुछ आपको कभी देखने मिले तो ये रॉन्ग नहीं होता. मैंने यहीं पे सेमीकोलन लगा दिया. अगर आपने यहीं पे सेमीकोलन लगा दिया, व्हाट डज इट मीन? इसका इंटरनली मीनिंग होता है कि दिस इज द फॉर लूप जिसका कोई लूप बॉडी नहीं है, इसमें कोई स्टेटमेंट नहीं है जिसको आपको रिपीट करना है, बट यस ये एग्जीक्यूट होगा. अगर आपने ऐसा लिखा है और नीचे आपके पास स्टेटमेंट है system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन आई, अगर ये स्टेटमेंट आपने ऐसे लिख दिया, अब इसका आउटपुट चाहिए. इसके आउटपुट में कई बार बच्चे गलती कर देते हैं कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन को कंसीडर करते हैं कि ये लूप का पार्ट है, बट नो, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ लूप क्योंकि आपका लूप यहीं पे खत्म हो गया. सो ये कुछ ऐसा हुआ है. सॉरी, यहाँ पे आपका जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई है ना, ये लूप के बाहर है. मींस इसकी क्या वैल्यू डिस्प्ले होगी? इट विल गिव यू 11 एंड दैट विल बी योर आउटपुट. व्हाई 11? सी, लेस देन इक्वल टू 10 तक तो आप लूप में ही चल रहे थे. I का वैल्यू 11 हुआ इसलिए लूप से बाहर आए. सो फाइनल वैल्यू विल बी डिस्प्लेड एज 11. आप इसको ऐसी गलती नहीं करेंगे कि लूप में कंसीडर करके सारी इंटरमीडिएट वैल्यूज लिख दें. दिस इज पॉसिबल विद 4 ओनली. आप 4 को ऐसे सेमीकोलन लगा के फिनिश कर सकते हो, y को नहीं कर सकते. ठीक है, ये भी आप एक ध्यान रखोगे. लूप एम्प्टी है, एग्जीक्यूट हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है 1 by 1 एंड फाइनली इट इज डिस्प्लेड हियर. देन नेक्स्ट, if I say I is equal to 1 and I plus plus, means there is no condition. तो अब कंडीशन के बिना तो लूप क्या हो गया? तो इनफाइनाइट हो गया. ऐसे लूप्स में हमेशा ध्यान रखना, अगर कभी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट आती है वेयर यू डोंट हैव कंडीशन, तो ऐसा लूप हमेशा बीच में ब्रेक होगा. कहीं ना कहीं ऐसा ब्रेक स्टेटमेंट लिखा हुआ होगा विच विल बी रेस्पॉन्सिबल टू टेक योर कंट्रोल आउटसाइड ऑफ द लूप. दिस इज योर इनफाइनाइट. I 1 है और हर बार इंक्रीज हो रहा है, ये नहीं चल सकता. तो कहीं ना कोई ऐसी कंडीशन जरूर होगी जहां पे कि आपको क्या लगाना है? ब्रेक लगा के लूप को बाहर निकालना है. ओके, I is equal to 1 if I say I greater than equal to 0 and I plus plus. अब यहाँ पे देखो आपके तीनों स्टेटमेंट एक दूसरे से मैच ही नहीं हो रहे हैं. I को 1 से स्टार्ट करवाया, greater than equal to 0, yes it is, and every time you are increasing I by 1, मतलब I हर बार एक से इंक्रीज हो रहा है. पहले 1 है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, and every time it will be greater than 0 only. So such kind of loop will become what? They are your never ending loops. कभी खत्म नहीं होंगे. So in short you can say they are infinite loop and this will trigger as runtime error. फॉर लूप के अंदर वाइल लूप लग सकता है, वाइल के अंदर फॉर लग सकता है, फॉर के अंदर इफ कंडीशन लग सकती है, इफ के अंदर फॉर लग सकता है. तो ये सारी चीजों को ऐसा नहीं कि अगर मैं इफ का क्वेश्चन आ रहा है तो सिर्फ इफ से रिलेटेड ही होगा, क्योंकि जब आपको एक बार सारा कंटेंट पढ़ा दिया जाता है तो किसी भी लूप के अंदर कोई भी कंट्रोल स्ट्रक्चर लगा सकते हो. आई एम टेकिंग अ वेरी बेसिक प्रोग्राम जो आप लोगों ने वाइल के साथ भी किया था. हियर विल डू राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर एंड डिस्प्ले इट्स फैक्टोरियल. डिस्प्ले करेंगे
यहाँ पे मैं फिर से आपको ये बताऊंगी कि मैं स्कैनर से इनपुट नहीं कर रही हूँ। स्कैनर से इनपुट करना जिसको नहीं आता वो प्लीज वीडियो देखो। जो नए व्यूवर्स हैं उनको मैं बता दूं कि हमने लॉजिक सिंप्लीफाइड नाम क्यों रखा है। और लॉजिक सिंप्लीफाइड में सिंप्लीफाइड की स्पेलिंग गलत नहीं है। हाँ, simplified. Why C? Because C is mother of all the languages. So I want to make logic simple for you. That's why this is simplified. And why it is C? Because C is mother of all the languages. So मैंने नाम थोड़ा logical रखने की कोशिश की. That's why it is logic simplified. Let's make a class named as Facto, and here I'm taking value from user public static void main, and I'm taking a value from user like this. As we have discussed that we can do any initialization before loop also. तो ये हमने loop के पहले initialization किया है, number greater than 0 और number को मैं 1 से decrease करूंगी. Why decrement? ये आप पिछले वीडियो में देखो, वहां पे हमने फैक्टोरियल का पूरा लॉजिक समझाया. And I is equal to I into num every time it will multiplied by the number. और नंबर कैसे चलेगा? सपोज नंबर 5 है तो 5 4 3 2 1, and after multiplication you will get the final result in I. Display it like this. Let's execute. 5 का factorial 120, and one more example we can check, that is suppose 7, and 7 का example that will become 5040. That is factorial. You can check which is 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. So this is the basic program which I have chosen कि ये आपके लिए बहुत सिंपल रहेगा, और आप इसके बेसिस पे आप लोग जो ट्राई कर सकते हो वो हो सकता है राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट A and B from user and display A raised to power B. That is, अगर A का वैल्यू 2 है, B का वैल्यू 3 है, तो मुझे रिजल्ट में क्या चाहिए? OTPT I want as 8. So ये आप लोग प्रैक्टिस करो. अगर नहीं होता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट करो या फिर मेल करो. I will do it for you. In the next session, we'll see only some more programs. वहां पे मैं explanation नहीं दूंगी for loop का. हम कुछ और programs देखेंगे which are related with for loop. In this video, I have explained with for loop. If you have any query, please ask. Stay tuned. Please like, subscribe my channel. Thank you for now.